Good morning, dear children. Welcome to History by SRB. So today we are going to solve the question answer of the chapter The Foamy Soap. Now this is your chapter, The Foamy Soap, chapter number 13. Now let's see the first question. Now, dear children, see the first question. Look at the pictures and fill in the blanks. Can you see your pictures? आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही है. तो you have to fill the missing letter. A buttered, देखो यहाँ पर क्या है, loaf है. तो you have to write down here L O A already लिखी हुई है. तो you have to write down only L and at the last you have to write down F. तो a buttered loaf, L O A F, loaf. So here already I have written here. You can pause the video and you can write down in your book. So second one is that a red coat, C-O-A-T, coat. Third one is that a strong boat, B-O-A-T. You have to write down B and T. Next one, soap. You have to write down S and P. A soap. So this one completed. Next we proceed. Okay. Now dear children, see the question number 2. तो अरेंज दी वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस. आपको यहाँ क्या करना है डियर? आपको अरेंज करनी है क्वेश्चन को, वर्ड्स को अरेंज करनी है. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डोपी रेड वेयर्स अ कोट. What you have to do? You have to arrange the words. How you can arrange? Already I have written here. You can see here. You write down Dopey wears a red coat. Completed. In the second also, a pink has soapy soap. Now how you have to write down? You have to write down, देखो, तो soapy has a pink soap. In this way you have to write down. Third one, slippery they become. How you have to write down? I have pointed the numbers. Which numbers you have to write down first? So first you have to write down they. So they become slippery. Completed. Number 4. In number 4, what is given here? See, boat, a, they. How you have to write down? You can see the numbering. First of all, you have to write down they see a boat. They see a boat. Now it is completed. Now proceed to the next question. Now dear children, see the question number 3rd. Answer the following questions. What is given here? First question is that what has Dopey to carry to the next town? यानी डोपी को नेक्स्ट टाउन में क्या ले जाना है? तो क्या ले जाना है? Now see the answer. Dopey has to carry a load of coal to the next town. This is the first answer. Question number A का. Now see the next question. Next question is that where does Soapy keep his soap? डोपी जो है सोप को कहाँ रखता है? पॉकेट में रखता है ना. Now see the answer. Soapy keeps his soap in his pocket. Now next question. Next question dear. Who lives in the jungle? जंगल में कौन रहता है? See the answer. Answer is a big bad lion lives in the jungle. Now see the next question. Question number D. Who is not scared of the lion? Lion से कौन डरा हुआ नहीं है? किसी डर नहीं लगा था? Now see the answer. Answer is Soapy is not scared of the lion. Now next question. Question number E. And the last question. What does the lion eat every day? Lion every day क्या खाता था dear children? Now see the answer. The lion eats boars every day. This is completed. Now dear children, see the next question. Question number 4. Put a cross in front of the sentences which did not happen in this story. यानी कि जो यहाँ जो सेंटेंसेस में बात कही गई है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट कहानी में थी या नहीं थी, ये बातें हुई थी घटना या नहीं, तो इसे आपको आइडेंटिफाई करना है. और यहाँ पर यदि नहीं हुई है तो आपको क्रॉस करना है. ऑलरेडी आई हैव डन दिस वन, यू कैन सी. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में ए, सोपी एंड डोपी क्रॉस द जंगल, ये तो हुई थी, क्रॉस नहीं लगानी है. दे, नंबर बी, दे मीट अ जिराफ, वे लोग जिराफ से मिलते हैं. ऐसा हुआ था क्या? नो, वे एक शेर से मिलते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस करना है. ऑलरेडी आई हैव डन दिस वन, यू हैव टू डू ऑल्सो इन योर ओन बुक. नंबर सी, द लॉयन टेक्स अ बाथ, क्या लॉयन बाथिंग करता है? नहीं, ये भी नहीं हुई है. तो दिस वन ऑल्सो यू हैव टू पुट क्रॉस. ऑलरेडी आई हैव डन दिस वन, यू कैन सी हियर इन ब्रैकेट. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रेन, डी नंबर
द लॉयन बैंग्स हिज हेड, लॉयन जो है अपने हेड को जमीन पे या पेड़ पर टकराता है ना, बैंक करता है, ये सही बात है तो क्रॉस नहीं होगा। नेक्स्ट में ई में द लॉयन ईट्स द गोट एंड द टोड, लॉयन जो है गॉट को और टोड को खा जाता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यू हैव टू ऑल्सो पुट हियर क्रॉस, यहां भी आपको क्रॉस लगानी है, ये क्रॉस यहां पर नहीं लगी हुई है, आपको इस तरह से क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट वन नंबर एफ, डोपी एंड सोपी स्विम टू अदर साइड, डोपी और सोपी क्या तैरकर दूसरी तरफ गए थे? नहीं। कैसे गए थे? बोट से गए थे। तो यहां पर भी क्या होगा? दिस वन ऑल्सो यू हैव टू पुट क्रॉस मार्क। नाउ दिस वन क्वेश्चन नंबर 4 completed. Next we proceed. Dear children, see the next question. Question number 5. What has been given here? Question number 5. Match the following to make complete sentences. तो आपको मैचिंग करनी है and already I have done for you. You have to see only. Dopey has to go to the next town. Soapy keeps a soap in his pocket. The lion wants to eat them for dinner and the lion sleeps on the soap. This one completed. You have to match like this. Now we have to complete the worksheet of the chapter The Foamy Soap. So let's we start without doing delay. So first question is that the foamy soap, you read about Dopey, the goat, Soapy, the toad and the lion. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? डोपी के बारे में, यानी जो एक बकरी थी, गॉड थी, सोपी के बारे में जो कि टोड था, मेढक था, और लॉयन के बारे में, तीनों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था ना। अब देखो क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि बताइए कि टोड में क्या क्वालिटीज थी, लॉयन में क्या क्वालिटीज थी, क्या गुण थे उसके, कैसा था वो, और ये डोपी कैसा था। तो यहां देखो इस एक हेल्प बॉक्स, यू कैन सी हियर a help box and in this help box qualities have been given about Soapy, about the lion and about the toad, Dopey means God. तो ये गॉड के बारे में, टोड के बारे में, लॉयन के बारे में क्वालिटीज दी गई है। नाउ डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू पिक आउट दीज क्वालिटीज एंड यू हैव टू ऑल्सो डिसाइड विच क्वालिटी बिलोंग्स टू होम। ये जो क्वालिटीज दी गई है, क्लीन है, बैड, गुड है, बैड है, तो ये किसके लिए है? तो ये बताओ। तो यहां पर देखो आपके लिए ब्लैंक स्पेस भी दी गई है। कहां पर? आपके बुक में देखो नीचे ये ब्लैंक स्पेस दी गई है और यहां पर आपको भरना है। यू हैव टू फिल, यू हैव टू फर्स्ट चूज दीज वर्ड्स एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। सो फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन इज हु इज फर्स्ट? गॉड। यू कैन सी हियर। तो गॉड कैसी थी? गॉड में कौन कौन सी क्वालिटीज थी? तो गॉड कैसा था, कैसी थी? हार्ड वर्किंग। तो दिस वन हार्ड वर्किंग, तो यू हैव टू राइट डाउन हार्ड वर्किंग, ऑलरेडी रिटेन हियर हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट में गॉड और कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी ना, गुड। तो हार्ड वर्किंग एंड गुड यू हैव टू राइट डाउन। तो कहां पर लिखोगे? ये ब्लैंक स्पेस में। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हियर दिस वन। यू हैव टू राइट डाउन हार्ड वर्किंग, ऑलरेडी रिटेन हियर, ओनली यू हैव टू राइट डाउन हियर गुड। नाउ नेक्स्ट वन लॉयन। तो लॉयन के बारे में कौन सी क्वालिटी आपको लिखना है? विच क्वालिटी यू हैव टू राइट डाउन। तो लॉयन कैसा था? बैड लॉयन था। और कैसा था? बिग लॉयन था, बड़ा था और खराब लॉयन था, बुरा लॉयन था। यू हैव टू राइट डाउन हियर बैड एंड बिग। नाउ सोपी कैसा था? व्हाट क्वालिटीज सोपी हैड? तो सोपी कैसा था? सोपी क्लीन था। और कैसा था? ब्रेव था, बहादुर भी था, और सोपी साफ सुथरा रहता था, क्लीन रहता था, स्मार्ट भी था सोपी। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर, you have to write down smart, clean and brave. Now this one worksheet 1 completed. So dear children, proceed to the next question, worksheet number 2. See dear children, worksheet number 2, work with your partner, fill in the blanks with suitable describing words from the help box. You have to write down the describing words. तो help box you can see here, आप देख सकते हो हेल्प बॉक्स है यहाँ पर। न्यू, लाइट, हार्ड, स्मॉल, बैड, अगली, ओल्ड। तो वुड इज हैवी बट कॉटन इज, क्या लिखना है? यू हैव टू राइट डाउन लाइट, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन। हैवी का अपोजिट क्या होता है? लाइट होता है, तो यू हैव टू राइट लाइट। द एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट बिग है। व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ बिग? स्मॉल, यू हैव टू चूज दिस स्मॉल हियर। नेक्स्ट वन ब्यूटीफुल, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर
ugly. Ugly means कुरूप या खराब. Next one is good. You have to write down here bad. Next one is soft. You have to write down here hard. This one hard. Next one old. You have to write down here new. Last one is young. You have to write down here old. This worksheet number 2 also completed. Next we proceed worksheet number 3. Dear children, worksheet number 3 is very easy. You have to just write OW in each blank space. Only you have to write down OW and you have to pronounce these words. तो आपको उच्चारण करनी है dear children. कैसे? The CROW. You have to write down here OW. Now what you will pronounce? Crow. So like this. SOW show, BOW bow, GLOW glow. तो इस तरह से आपको रीडिंग करनी है, प्रोनाउंस करनी है. GROW grow, BROW BROWN brown, like this. BLOWS blows. Okay dear children. Now worksheet number 3 also completed. Next we proceed worksheet number 4. And now this is the last worksheet number 4. So what the question here? Fill in the crossword puzzle. For each clue, think of a word having the OA sound blend. So you have to write down OA sound. First one is that sound of a lion. तो lion का sound कैसा होता है? क्या कहा जाता है? What is called roar. So you have to write down here ROAR, roar. नेक्स्ट वन, वी वेयर इट इन विंटर्स. विंटर्स में पहनते हम लोग क्या पहनते हैं डियर चिल्ड्रन? कोट, COAT कोट. इन रेनी सीजन चिल्ड्रन मेक पेपर. रेनी सीजन में बच्चे पेपर से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं आप लोग? बोट बनाते हो, नाव बनाते हो, कागज की नाव. BOAT. तो BOAT वन एक स्टॉप बॉक्स है तो यहां पर S लिखेंगे आप. तो BOATS बोट्स. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4. माई टीचर राइट्स ऑन इट. तो हमारे टीचर कहाँ लिखते हैं? हम लोग कहाँ लिखते हैं? बोर्ड पर. BOARD बोर्ड. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन नंबर 5. आई स्प्रेड बटर और जैम ऑन इट. बटर और जैम कहाँ लगाते हो आप लोग? टोस्ट पर लगाते हो. TOAST टोस्ट. नेक्स्ट वन, ट्रैफिक मूव्स ऑन इट. ट्रैफिक कहाँ पर होते हैं? रोड पर, सड़क पर. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर ROAD रोड. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, वी टेक बाथ विथ इट. हम लोग किससे नहाते हैं? सोप से. यू हैव टू राइट डाउन हियर SOAP सोप. नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, अ फ्रॉग लाइक एनिमल. एक एनिमल जो फ्रॉग की तरह दिखता है. व्हाट इज कॉल्ड? टोड. TOAD टोड. नेक्स्ट वन, इट्स लिटिल वन इज कॉल्ड किड. किसके बच्चे को किड कहा जाता है डियर चिल्ड्रन? गॉट. GOAT गॉट. बकरी के बच्चे को, गॉड के बच्चे को. ओके. तो नाउ डियर चिल्ड्रन दिस ऑल वर्कशीट कंप्लीटेड. सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर बुक एंड लर्न दिस वन. ओके डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.